قالوا وتركنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے دوستو، ملک لال کے قیوم سنی مسلمانوں، کائنات میں جتنی میٹھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب سے زیادہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نام کو مٹھاس بخشی ہے. اس لیے اپنا منہ میٹھا کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سادات کرام، محترم علماء و مشائخ، معززین مددگار، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، آج کا یہ عظیم شان پروگرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کا پروگرام ہے. آج ہمارا مقصد صرف اپنے رب کی بارگاہ میں سپاس کے کلمات ادا کرنا ہے. یا اللہ، تیری کرم نوازی، تیری عنایت، تیری مہربانی، وہ محبوب جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام عرضیں کرتے رہے تاج نبوت لے دے اور محمد عربی کی غلامی دے دے. نبی دعائیں کرتے رہے، لیکن میرے مالک تیری اپنی وصیت، تیری اپنی مرضی. ہم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی، ہم نے عرض نہیں کیا، لیکن بغیر طلب کے تو نے اس محمد مصطفیٰ کا ہمیں امتی بنا دیا. ہم تیری بارگاہ میں مشکور ہیں، شاکر ہیں، تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں قرآن پاک کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے عالم ارواح میں 1,24,000 میں کم و بیش انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کی ساری رات وہ قرآن پاک میں ذکر فرمائی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یاد کرو اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر سلف صالحین ہیں، اور پھر جلدے جلدے آج اس آیت کا مخاطب میں ہوں، آج اس آیت کے مخاطب آپ ہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے، اس سے پیچھے ایک پھر پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یہ اذکروا. ہمیں کہا جا رہا ہے یہ بات ناقابل فراموش ہے، اس کو بلانا نہیں، اس کی رپیٹ نہیں کرنی، اس کو تھوڑے اعتراض سمجھنا ہے، اس کی طرف توجہ رکھنی ہے، اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے. مالک کیا بات ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو ان حسین اور خوبصورت لمحات کو جب اللہ کریم نے نبیوں سے میثاق لیا اور انہیں ارشاد فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، میں تمہیں کتابیں دوں گا، میں تمہیں حکمتیں دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے، رسول آ جائے، بلندی والا رسول آ جائے، سبق والا رسول آ جائے، بہا کے چہرے والا رسول آ جائے، غیر کی لطفوں والا رسول آ جائے، آزاد کی آنکھوں والا رسول آ جائے، بدخونے کی یمین والا رسول آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول، اس کی شان یہ ہوگی مصدق لما معکم. میرے نبیوں، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا اور تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہارے معاصر جمیلہ کی تصدیق کرے گا، تمہارے اخلاق عالیہ کی تصدیق کرے گا. میرے دوستو، ملک پاک کے قیوم سنی مسلمانوں، یہ ملک پاک تھا. نگاہ چوک کی گواہ ہو جائے، کرو دیوار کی گواہ ہو جائے، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. میرے رب نے فرمایا میرا نبی مصدق ہوگا، مصدق تصدیق کرنے والا، اور تصدیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. آپ کسی 19 گریڈ کے افسر کے پاس سارے کاغذات لے کے جائیں، اسے کہیں تصدیق کر دو، تو وہ آنکھیں بند کر کے تصدیق نہیں کرے گا، پہلے پڑھے گا، اس کا مضمون پڑھے گا، دیکھے گا اور پھر کہے گا ہاں یہ مضمون اس قابل ہے، اس کی تصدیق کی جائے. تو تصدیق بغیر علم کے نہیں ہوتی، تصدیق بغیر جانے نہیں ہوتی. تو اللہ کریم فرماتا ہے، اور یہ عالم ارواح میں
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया का इनकार करते हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को दिखाने के लिए सुबह शाम मसरूफ रहते हैं। हज़रात मोहतरम 1,24,000 के तो देश अंबिया के नाम से अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा रसूल आ जाए और जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद होगा उसकी तस्दीक करेगा, उसकी तस्दीक करेगा, उसकी तस्दीक करेगा। अंबिया के नाम सब गा रहे हैं, मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें मुस्तफा का बयान हो तो इनकार करना नबियों की सुन्नत नहीं, सर झुका देना ये नबियों की सुन्नत है। सर झुका देना ये नबियों की सुन्नत है। और फिर फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, पूछिए सैयद असरार हुसैन शाह साहिब से, पूछिए सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब से, पूछिए अल्लामा मोहम्मद अशरफ चिश्ती से, पूछिए अल्लामा मोहम्मद अशरफ नज़ामी से, पूछिए इन उलमा से। सुम्मा ये ताकीद तराकी के लिए आता है। एक काम के बाद जब दूसरा काम जरा ताकीद से हो तो सुम्मा लाया जाता है। अल्लाह करीम ने यहाँ फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, तो यहाँ खत्मे नबूवत का पैगाम दिया। ये जुलूस खत्मे नबूवत की गोल्डन जुबली का मौका है, खत्मे नबूवत की गोल्डन जुबली का मौका है, खत्मे नबूवत की गोल्डन जुबली का मौका है। और आपके मोहतरम इसलिए यहाँ खत्मे नबूवत की बात करना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम फरमा रहा है सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। मतलब क्या है? तुम आओगे लेकिन तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। नूह तुम आओगे, तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। इब्राहीम तुम आओगे, तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। इस्माईल तुम आओगे, तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। याकूब और यूसुफ तुम आओगे, तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। मूसा ईसा तुम आओगे और तुम्हारे बाद मेरा रसूल आएगा। तो सुम्मा ने ये फायदा दिया कि हुजूर सबने नबूवत का ताज पहन के आएंगे। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा माअकुम। अल्लाह मुबश्शिर का मकसद ये होता है कि वो बाद में आने वाले की खुशखबरी देगा। 1,24,000 अंबिया किराम खुशखबरी देते रहे। जनाब आदम ने अपने फराइज़ अदा किए, मोहम्मद मुस्तफा के आने की खुशखबरी दी। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज़ मज़हबी अदा किए, मोहम्मद मुस्तफा के आने की खुशखबरी दी। जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज़ मज़हबी अदा किए, मोहम्मद मुस्तफा के आने की खुशखबरी दी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज़ मज़हबी अदा किए, मोहम्मद मुस्तफा के आने की खुशखबरी दी। लेकिन एक नबी का नाम लूट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वक्त करीब है, इसलिए तफसील में जाना नहीं चाहता। बताते मोहतरम 1,24,000 के जो देश अंबिया के नाम इस हस्ती के आने की खुशखबरी दे रहे हूँ। अभी भी समझने की जरूरत है कि उसकी आमद पर खुशी मनानी चाहिए कि नहीं। सुभान अल्लाह। ये आज आमद मुस्तफा का जलसा हो रहा है। हम सभी आमद मुस्तफा की बात कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है, यही जलसा जनाब आदम ने किया, जनाब नूह ने किया, जनाब ईसा ने किया, जनाब इब्राहीम ने किया, याकूब और यूसुफ ने किया, मूसा और ईसा ने किया, हज़रत यहूदा ने किया, ज़करिया और यहया ने किया, तमाम अंबिया किराम ने किया। फर्क सिर्फ ये है वो फरमाते रहे आएंगे 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 आएंगे, और हम कहते हैं ओ भाइयों कर्म हो चुका, मेहरबानी हो चुकी, हम नवाजे जा चुके। हमें अल्लाह ने अपना महबूब को भी अल्लाह फरमा दिया। तो फरमाया मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। आए पैगंबराने किराम, तुम्हारा मनसब फिर ये होगा कि जब आमिना का लाल आ जाए तो तुमने उसके ऊपर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। तुमने उसके ऊपर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। अल्लाह आप मासूमीन से हो रही है, गुनाहों से पाक मखलूक से बात हो रही है, मजमून विरोध कर दिया जाता तो बात में छोड़ देखा ताकि जुलूस आगे चलता, लेकिन मेरे रब ने इस मजमून को आगे चलाया। बताया काला तुम आए नबियों, क्या तुमने इस हाथ
नहीं, झुंडों का कोई हिस्सा नहीं, फकत ज़ाया करने की कोई गुंजाइश नहीं। मोहम्मद मोमिन की जिंदगी भी बड़ी कीमती होती है और नबी की सारी जिंदगी को बहुत ही कीमती होती है। तो अंबिया के नाम से फरमाया जा रहा है, क्या तुमने मेरी तरफ से ये भारी जिम्मेदारी कबूल कर ली है? मतलब क्या कि तुम मेरा महबूब आ जाए तो अपनी नबूवतों का जिक्र छोड़ के उससे तस्करी करना शुरू कर दोगे? अच्छा, बात क्या खत्म नहीं हुई। तमाम नबियों ने बैकुमान कहा, साधु करना, हमने इकरार कर लिया, हमने इकरार कर लिया। ये किसको मनवाया जा रहा है? किसकी हस्ती को मनवाया जा रहा है? ये किसकी अजमत को मनवाया जा रहा है? ये किसकी इज्जत को मनवाया जा रहा है? ये किसकी सदर को मनवाया जा रहा है? ये किसकी सदर को मनवाया जा रहा है? ये किस हस्ती की शान को मनवाया जा रहा है? अंबिया के नाम कह रहे हैं, कानू वकरना, हमने इकरार कर दिया। फिर आगे वही के सिर्फ फरमाया, साला फशहदू, मेरे नबियों, तुम सारे के सारे इस वादे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गवाह बन जाओ। जैसे मैं कहता हूँ इस जलसे के ऊपर मदद वालों तुम सारे गवाह बन जाओ। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद मुस्तफा की आमद का जलसा आपके अल्लाह में है, मैं इसके ऊपर गवाह बन जाओ। तमाम नबियों को गवाह बना दिया। कायनात की किसी हकीकत को साबित करने के लिए दुनिया की किसी अदालत में और किसी की मदद में गवाहियों से चीज साबित हो जाती है। यहाँ 1,24,000 का उद्देश्य अंबिया के नाम इस बात पे गवाह है कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जैसा किया था आपने वहां में और उनकी अजमत को बनवाया था और उनकी आमद का जिक्र किया था। सदाते मोहतरम तमाम नबी भी गवाह हो गए। साथ फरमाया, आना माको मेरे शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। आखिरी बात सुनिए, बड़ी तवज्जो चाहिए, बड़ी तवज्जो चाहिए, मुझे बड़ी तवज्जो चाहिए इस बात के लिए। फरमाया फमन तवल्ला वालेका फउलाइका हुमुल फासिकून, नबियों तुम साहिब मनसब हो, साहिब तिलावत हो, साहिब करामत हो, साहिब बुजुर्गी हो, तुम्हारी शान है, अज़मतें हैं, लेकिन सुनो, जिसने इस वादे के बाद मेरे महबूब की तरफ कुछ की तो सुन लो, ताजे नबूवत छीन लूंगा और नाफरमानों में दाखिल कर दूंगा। नबियों से कहा जा रहा है, आदम पीछ न करना मोहम्मद मुस्तफा की तरफ, पीछ न करना मोहम्मद मुस्तफा की तरफ, मूसा साहिब कलाम हो, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ पीछ न करना, ईसा कलीमुल्लाह हो, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ पीछ न करना। जब नबियों से ये पीछ करने के ऊपर कहा जा रहा है, अगर किसी ने मुंह फेरा तो मैं बातें नबूवत छीन लूंगा और फांसी को भी दाखिल कर दूंगा। हज़रत मोहतरम आया तो उसको भी उत्तर रही है, जब सारे नबी अपना वक्त नबूवत बुला के चले गए, इस आयत में मुझे और तुझे पैगाम दिया जा रहा है, मुझे और तुझे मैसेज दिया जा रहा है, मुझे और तुझे समझाया जा रहा है। नबी की इज्जत को मामूली न समझना, नबी की शान को मामूली न समझना। वहाँ नबी भी होगा, अगर वो भी चीज करे तो उसको भी महबूब कर दिया जाता है और तुम इस खेत की मूली हो। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या किस्मत है? हज़रत मोहतरम आपने अल्लाह में इतना मुख्तम शान जलसा करके अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ अता कर दिया है, हमें बहुत सारे शवाहिद दे दिए हैं, हमें बहुत सारे दलाइल दे दिए हैं। इस आयत को मैं बहुत फैला सकता हूँ, लेकिन जुलूस नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हीं अल्फाज से इत्तेफाक करूँ। वो हमें ज़रूर पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से खुशी का इजहार करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं बारे दिगर मौलाना अब्बास मोहसिन साहब ने भी आपसे कहा, मैं बारे दिगर करूँगा। ये इंतहाई मेयारी जुलूस है, ये तकवीयत से पाक जुलूस है, ये फजूलियत से पाक जुलूस है, ये नबी की अज़मत का जुलूस है, ये नबी पाक की रिफत का जुलूस है, ये नबी पाक की शान का जुलूस है। इसलिए संजीदगी चाहिए, इसलिए संजीदगी चाहिए, इसलिए आपके लोगों के ऊपर दुरूद चाहिए, आपके लोगों के ऊपर सलाम चाहिए, किसी को धक्का ना दे, किसी को तकलीफ ना दे, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, जाने रहमत लाखों सलाम।
जाने रहमत के जुलूस में हो, इसलिए किसी को धक्का न दो, किसी को तकलीफ न दो, दूसरे दोस्तों के लिए गुंजाइश पैदा करो। वो है कि अल्लाह के हम अमल की को नसीब फरमाए। वो बात क्या इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह जी, पुरानी किताब नाम है यकीन सुंदर मदीना गांव कोटेड़ा से जुलूस हमने नाज़िम डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब, हज़रत अल्लामा वाजिद साहब की क़यादत में